Morning students, how are you? Welcome to the Maths Class 5 Chapter 3 Factors and Multiples NCERT textbook questions. This is part 11 of Chapter 3. Today we will solve some NCERT textbook questions, students. See question number 1. Complete the table for different numbers of bangles. For each number, see what different groups can be made without any bangle being left. Different number of bangles are given, students. You have to decide what different groups can be made without any bangle left. For example, 18 bangles are there. So different groups that can be made are 1, एक तो 1 का ग्रुप बन सकता है स्टूडेंट्स. सेकेंड 2 बैंगल्स का ग्रुप बन सकता है. थर्ड 3 बैंगल्स का ग्रुप बन सकता है. 3 बैंगल्स का अगर ग्रुप बनाएंगे तो 6 ग्रुप बनेगा स्टूडेंट्स. 6 बैंगल्स का ग्रुप बनाएंगे तो 3 ग्रुप्स बनेगा. 9 बैंगल्स का ग्रुप बनाएंगे तो 2 ग्रुप्स बनेगा. और 18 बैंगल्स का ग्रुप बनाएंगे तो 1 ग्रुप बनेगा. ठीक है. और 1 बैंगल का ग्रुप बनाएंगे तो 18 ग्रुप्स बनेगा स्टूडेंट्स. तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि कितना ग्रुप्स बनेगा स्टूडेंट्स. जितना भी 18 का फैक्टर है, मीन्स कि फैक्टर्स ऑफ 18 1 2 3 6 9 एंड 18 मीन्स कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 18 आर देयर. 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स आर देयर. इट मीन्स कि फ्रॉम 18 bangles 6 groups can be made. 6 different groups can be made. Similarly, you will write all the factors of 24 students. 24 bangles means write all the factors of 24s. All the factor of 24 are 1 24 जा 24. तो 1 ग्रुप बन सकता है 24 बैंगल्स ईच का. और 24 ग्रुप्स बन सकता है 1 बैंगल ईच इन ईच ग्रुप का. उसी ढंग से 2 इज द फैक्टर ऑफ 24 एंड 12 इज द फैक्टर ऑफ 24. बिकॉज 2 12 जा 24. तो 2 ग्रुप्स बन सकता है 12 बैंगल्स ईच का, या 12 ग्रुप्स बन सकता है 2 बैंगल्स ईच का. इसी ढंग से 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 24. 3 8 जा 24. तो 3 ग्रुप्स भी बन सकता है और 8 ग्रुप्स भी बन सकता है. उस ढंग से 4 इज द फैक्टर ऑफ 24. 4 6 जा 24. तो 4 ग्रुप्स 6 बैंगल्स इन ईच ग्रुप, और 6 ग्रुप्स 4 बैंगल्स इन ईच ग्रुप. ये बना सकते हैं आप. उसके बाद 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 24. 6 इज फैक्टर ऑफ 24. तो 6 वी हैव रिटन. Thus this much group can be formed. How many groups? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 groups can be formed without any bangle being left. Similarly, from 5 bangles how many groups can be made, students? Factors of 5 are 1 and 5. Only 2 groups can be made. From 9 how many groups can be made? Factors of 9 are 1 3 and 9. So only 3 groups can be made. From 7 1 and 7 2 groups can be made. From 2 1 and 2 2 groups can be made. From 10 1 2 5 and 10 are the factors of 10, means ki 4 groups can be made. And 1 bangle 1 group can be made. 20 bangles, factors of 20 are 1 2 4 5 10 and 20. Thus 6 groups can be made from 20 bangles. 13 is a prime number, means 1 and 13 are the only factors. 2 groups can be made. 21, factors of 21 is 1 3 7 and 21. Thus 4 groups can be made out of 21 bangles without any bangle being left. Thus in all you have to write the factors of number of bangles, students. Okay. Now see question number 2.
There is a garden in Anu's house. In the middle of the garden there is a path. They decided to tile the path using tiles of length 2 feet, 3 feet and 5 feet. मीन्स कि अन्नू के हाउस में एक गार्डन है और गार्डन के बीच में पाथ है और वे लोग पाथ को जो है टाइल्स से कवर करना चाहते हैं और टाइल्स का लेंथ 2 फीट है, 3 फीट है और 5 फीट है। ठीक है। द मैसन टाइल्ड द पाथ, tiled the first row with 2 feet tiles, second row with 3 feet tiles and third row with 5 feet tiles. The mason had not cut any of the tiles. Then what is the shortest length of path? तो shortest length of path क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि टाइल्स को कट नहीं करता है, इसका मतलब है कि जो लेंथ है पाथ का वो 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 2, 3 एंड 5। तो लेंथ ऑफ टाइल्स यूज्ड आर 2 फीट, 3 फीट एंड 5 feet. Therefore, the length of the path will be the multiple of 2 feet, 3 feet and 5 feet. And the shortest length of the path is the LCM of 2 feet, 3 feet and 5 feet. So, let us find the LCM of 2, 3 and 5. We see 2, 3 and 5 are prime numbers. It means कि LCM will be the product of 2, 3 and 5. We do the working. LCM of 2, 3 and 5 equal to 2 into 3 into 5 equal to 30. Therefore, the shortest length of the path equal to 30 feet. क्योंकि 30 feet जो है shortest length है path का स्टूडेंट्स, इसलिए 2 feet का टाइल्स भी फिट बैठ जाता है। 15 टाइल्स में 30 फीट हो जाएगा बिना कट किए हुए। 3 फीट लेंथ का टाइल्स जो है वो 10 टाइल्स में 30 फीट हो जाएगा और 5 फीट लेंथ का टाइल्स जो है 6 टाइल्स में 30 फीट हो जाएगा। 5 6 जा 30। तो विदाउट कटिंग एनी टाइल्स दीज टाइल्स कैन बी फिट इन 30 फीट लेंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। मनोज हैज मेड अ न्यू हाउस. He wants to lay tiles on the floor. The size of the tiles, the size of the room is 9 feet into 12 feet. In the market, there are 3 kinds of square tiles: 1 foot into 1 foot, 2 feet into 2 foot, and 3 feet into 3 feet. Which size of the tiles should he buy for his room that he can lay it without cutting? अगेन यहाँ पर एक रूम का साइज दिया हुआ है स्टूडेंट्स 9 फीट इंटू 12 फीट और मार्केट में 3 टाइप्स का टाइल्स है। 1 फीट बाई 1 फीट का टाइल्स है, 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल्स है और 3 फीट बाई 3 फीट का टाइल्स है। तो कौन सा टाइल्स उसको ख़रीदना चाहिए ताकि बिना कटिंग किए हुए 9 फीट इंटू 12 फीट के रूम में वो लगा सके? तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? टाइल्स का जो साइज होगा वो 9 का भी फैक्टर होगा और 12 का भी फैक्टर होगा। मतलब ये दोनों का फैक्टर होना चाहिए टाइल्स का साइज। तो 9 का फैक्टर क्या क्या है? 1 तो 9 का फैक्टर है स्टूडेंट। तो 1 फीट बाई 1 फीट का टाइल्स तो फिट हो सकता है 9 फीट इंटू 12 फीट के रूम में, क्योंकि 9 फीट के लिए 9 टाइल्स लगेगा। 12 फीट अगर लेंथ है तो इसके लिए 12 टाइल्स लगेगा। तो 1 तो सबका फैक्टर है। तो 1 फीट बाई 1 फीट का टाइल्स उसमें सेट हो जाएगा। अब 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल्स सेट होगा कि नहीं, ये देखिए स्टूडेंट्स। 2 जो है 9 का फैक्टर नहीं है। इट मीन्स कि अगर 2 फीट का टाइल्स वो ख़रीदता है तो 9 फीट ब्रेड्थ के लिए जो है 4 टाइल्स में 8 फीट होगा और
1 फीट के लिए कट करना पड़ेगा, क्योंकि 9 फैक्टर नहीं है 2 का। 12 का तो फैक्टर है, लेकिन ये 9 फीट में फिक्स नहीं बैठेगा। बिना कटिंग किए हुए 2 फीट के टाइल्स को नहीं लगा सकते हैं, तो ये नहीं होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए 3 फीट बाय 3 फीट। अब 3 जो है फैक्टर है बोथ 9 और 12 का। 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, मीन्स कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में फिट कर जाएगा 3 फीट का टाइल्स बिना कटिंग किए हुए। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन तो ऐसे ही ओरली निकल गया स्टूडेंट्स कि वो 2 टाइप का टाइल्स खरीद सकता है, या तो वो 1 फुट इंटू 1 फुट का टाइल्स खरीद सकता है, या 3 फीट इंटू 3 फीट का टाइल्स वो खरीद सकता है, ताकि वो बिना कट किए हुए उसको अप्लाई कर सके। तो इसका सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, साइज ऑफ द रूम इज 9 फीट इंटू 12 फीट। साइज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ टाइल्स आर 1 फुट इंटू 1 फुट, 2 feet into 2 feet, 3 feet into 3 feet. Size of tiles that can he lay without cutting must be the common factors of 9 and 12. और 9 और 12 का कॉमन फैक्टर्स होना चाहिए। Now factors of 9 are 1, 3 and 9, and factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So common factors of 9 and 12 are 1 and 3. Only 1 and 3 are the common factors. Therefore, he should buy the tiles of size either 1 foot into 1 foot or 3 feet into 3 feet. That's all for today, students. In next video, we will solve questions from Scratch Your Brain. Till then, stay at home, stay safe, keep learning and keep growing. And if you like this video series, please subscribe my YouTube channel. Thank you.